Assalamu alaikum to everyone. Good morning. I think it's not good morning, it's good afternoon. So, on behalf of NED Alumni Canada, which is normally pronounced in NEDEC, I am pleased to welcome all of you here in collaborative virtual program, Empowering Knowledge Building Community, Wills and Powers Autonomy. And this program is organized by Adil Law Professional Corporation in collaboration with NED Alumni Canada. Today's session will focus on the importance of the will, power of attorney, living wills, and other practical considerations related to the personal and family planning. So before we begin, I would like to request everyone to keep their microphone muted during the presentation. Questions may be posted in the chat, and we can address whatever we can do at the end, because total 1 hour session. The last 10 minutes or 15 minutes we will dedicate it for QA. And this is actually general purpose webinar, so this is no individual legal advice here. And we are grateful to our speaker to participate here, come here and join. Before I start, I would like to request to the President NEDAC, Zubair Mati, to just introduce our work here. Zubair sir. Thank you, Dr. Ali Saab. Assalamu alaikum, everyone, and thank you, our today presenter, Mr. Adil Farooqi, the law firm. Thank you, Adil Bhai, for joining us and share us for the time. My name is Zubair Mati, as the NEDEC president. Just I share your little introductions about NEDEC. NEDEC is one of the largest overseas alumni association of NED University. Our mission is not only to connect alumni with one another, but also to serve our alma mater and the wider community through professionals, networking, mentorship, student scholarship, educational initiatives, and community service. सेम इसी तरीके से हमने कांटेक्ट किया आदिल भाई से. आदिल भाई द लॉ फर्म रन कर रहे हैं, द लॉन्ग टाइम इन GTA and very known persons. Regarding some legal issue or especially will, is very important for us, or especially our immigrants जो हम यहाँ पर हैं. हम यहाँ पर आके एसेट बिल्ड कर देते हैं, मगर बहुत से लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उसको थ्रू ऑन करने के लिए, जो आदिल भाई आपको आज एक्सप्लेन करेंगे. Alhamdulillah, today NEDEC represents more than 1,000 NEDians across Canada. This achievement is the result of the continued support of our volunteer, board members, sponsor, and all alumni. We believe that together we can create a greater impact. With this spirit, we continue to connect our alumni, guide the younger generations, and carry forward NEDian traditions of excellence. On behalf of NEDEC, I warmly welcome you all. Your presence, supports, and encouragement are a great honor of us. Thank you, Jazakallah khair, and back to the Dr. Ali. By mute आप. Okay. Thank you, Zubair. Your nice introduction to the NEDAC. And I would like to invite Adil Farooqi Saab to please start your webinar and give us valuable information on the law. We are basically the engineer firm, and we are very much try to know something about your discipline, because we are not much aware of the law and their thin lines, especially. So I'm really myself very curious to listen to you. Please, you can start. You can also we our gathering is all Urdu community. If you can give us in Urdu, it's okay. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much. First of all, I want to say thank you to the team of NED to give me this opportunity to share my knowledge with your NED community. और उसके साथ साथ स्पेशली मैं जुबैर भाई और अलीम भाई आप दोनों का स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली यू विल सी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल रियलाइज कि देयर आर मेनी wrong information in the public
जो कि जिसकी वजह से लोग कुछ ऐसे डिसीजन कर लेते हैं जो कि उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली के लिए इशू क्रिएट कर देते हैं। तो आई विल ट्राई टू क्लियर अप फ्यू ऑफ दोज इश्यूज एज वेल, ताकि लोग जब भी किसी लॉयर के पास जाएं विल बनाने के लिए या पावर ऑफ अटर्नी बनाने के लिए, दे शुड हैव अ वेरी क्लियर माइंड कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछने हैं और उसको किस तरह से प्रोसीड करना है उस चीज पे। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो एक जनरल डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूँ अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, that information is for information purposes only. Of course, there are some legal aspects, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप प्लीज अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि हर शख्स के अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं, हर शख्स के अपने कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके हिसाब से उनको हम उनकी विल के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आई विल सजेस्ट आप जब भी आप विल बनाने का सोचें तो किसी न किसी लॉयर के साथ, ऐसे प्रोफेशनल के साथ इन टच जरूर हो जो कि इस प्रोसेस को जानता है। और एक और चीज आप लोगों के नॉलेज के लिए कि हर लॉयर जो है वो विल नहीं बना सकता, ना ही बनाता है, क्योंकि ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ, और 20 इयर्स में हमने हजारों विल्स बनाई हैं, हजारों पावर ऑफ अटर्नीज बनाए हैं, और जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो विल को लेके कुछ चीजें सेटल करनी होती हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं। सो वी हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस टू डील विद ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, दे वांट टू प्रोसीड टू मेक देयर विल, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। एंड मैं सेशन के एंड पे अपना बिजनेस कार्ड भी आप लोगों के साथ ज्वाइन शेयर कर दूंगा। इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस। तो जी कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आज का टॉपिक जो है हमारा फोकस होगा विल्स के ऊपर और पावर ऑफ अटर्नीज के ऊपर। हम सबसे पहले हम बात करेंगे विल के लिए। विल में देखिए, विल जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका बनाने वाले का एक बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट आप किसी भी वक्त उसको चेंज भी कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि जो विल बनाने वाला है वो शख्स साउंड माइंडेड हो, उस वक्त उसको किसी किस्म की कोई मेंटल डिजीज ना हो या कोई किसी डॉक्टर्स ने उसको मेंटली इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर ना कर दिया हो। विच जस्ट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, कई दफा होता है किसी कोई इंडिविजुअल जो है वो मेंटली तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिजिकली उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाते या कुछ ऐसे इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इस केस में वो अपनी विल को चेंज भी कर सकते हैं और नई विल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका जो रिवर्स एक कंडीशन है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई मेंटल डिजीज, कोई अल्जाइमर हो गया, कोई डिमेंशिया हो गया या इस किस्म की कोई डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से वो सोच नहीं पाते, अपने डिसीजन नहीं कर पाते। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ऐसा शख्स ना विल बना सकता है, ना ही उसको चेंज कर सकता है। तो विल बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है एग्जीक्यूटर्स जो होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी इज द सेम थिंग। उसका मकसद ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसके एसेट्स को कौन कंट्रोल करके उनको डिवाइड करेगा, ये मकसद होता है एग्जीक्यूटर्स का या ट्रस्टीज का। और इस एग्जीक्यूटर की भी सिर्फ दो कंडीशंस हैं। एक एग्जीक्यूटर जो है वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए जिस दिन उसको अपॉइंट किया गया है, प्लस उसको भी किसी किस्म की मेंटल इश्यूज नहीं होने चाहिए। दीज आर द ओनली टू कंडीशंस। तो एग्जीक्यूटर ऑलमोस्ट हमेशा वही शख्स होता है जिसके ऊपर विल बनाने वाला ट्रस्ट कर सकता है कि भाई मेरे मरने के बाद ये मेरी एसेट्स को कंट्रोल करके उसको मेरी विल के मुताबिक जो मैं विल बनाऊंगा उसके मुताबिक इसको डिवाइड करेगा। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी जो ड्यूटीज होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया हो अपनी विल के अंदर। तो अगर आपको किसी ने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया अपनी विल के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी डेथ के बाद सबसे पहले किसी लॉयर को हायर करें, उसके साथ साथ एक अकाउंटेंट को हायर करें, क्योंकि किसी के मरने के बाद ये दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसको उसके तमाम एसेट को सेटल करने के लिए। अकाउंटेंट जो होता है वो उसके तमाम टैक्सेस फाइल करता है, और जो लॉयर होते हैं वो उनकी विल को रिव्यू करके उसको कोर्ट में सबमिट करके, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस को वो लॉयर्स उस प्रोसेस को करते हैं। और जो ट्रस्टी होता है उसको भी देखिए, उसको हर डिसीजन
ऐसे करना होता है जैसे कि वो अपने लिए किसी काम का डिसीजन कर रहा है। वो ट्रस्टी मरने वाले के एसेट्स को अपने फायदे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और लेकिन अगर वो ट्रस्टी चाहे तो जो स्टेट है उसको अपना जो उसने टाइम लगाया है उसको चार्ज बैक जरूर कर सकता है, चाहे विल में लिखा है चाहे नहीं लिखा, क्योंकि ये उसका राइट है। अमूमन लोग नहीं करते, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। अब जो जो चार्ज क्या करना है ये भी एक अलग टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह किसी और उसमें करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त विल बनाने पे है, ना कि उसके साइड नोट्स के ऊपर। तो एनीवेज, ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए आपको दो कंडीशंस हैं, और अमूमन जब एक कपल हमारे पास आता है तो वाइफ जो होती हैं वो अपने हस्बैंड को ट्रस्टी अपॉइंट कर देती हैं, हस्बैंड जो होते हैं अपनी वाइफ को ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हैं। तो ये तो हो जाता है फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रस्टीज। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन मोर ऑल्टरनेटिव ट्रस्टी इन द विल। और कुछ लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो आपके बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जिनको आपकी जायदाद में से कुछ मिलना है, वो आपके ट्रस्टी नहीं हो सकते। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे भी आपके ट्रस्टी हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त आपके ट्रस्टी हो सकते हैं, आपके नेबर्स आपके ट्रस्टी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार ऐसा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, वो साहब आपके ट्रस्टी हो सकते हैं, मोहतरमा कोई है वो आपकी ट्रस्टी हो सकती हैं। और आप जब ट्रस्टी बनाते हैं तो आप ट्रस्टीज को इन लेयर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने एक बंदे को ट्रस्टी बना दिया, उसके बाद फिर आपने एज एन ऑल्टरनेटिव किसी दूसरे को बना दिया, फिर एज एन फर्दर अल्टरनेटिव आपने किसी तीसरे को बना दिया। एक ये प्रोसेस है ट्रस्टीज का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक ही शॉट में दो तीन लोगों को ट्रस्टीज इकट्ठा बना देते हैं कि भाई हम इकट्ठा इन दो तीन लोगों को ट्रस्टी बना देंगे, तो फिर वो तब तब वो जो है वो मिल के डिसीजन करते हैं कि स्टेट को कैसे रन करना है। ये तो आपका ट्रस्टी अपॉइंट हो गया। जब ट्रस्टी जब अपॉइंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, जो ट्रस्टी का होता है वो होता है उसको एसेट्स को डिवाइड करना। लेकिन जब आप विल बना रहे हैं तो उसमें एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो एक जनरल वर्ड जो आपके ज़हन में एसेट का है उससे टोटली डिफरेंट है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसके जो भी एसेट्स हैं उसमें से उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसमें से मरने वाले के तमाम किस्म के टैक्स पे किए जाते हैं। अब ये जब मैं टैक्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप अकाउंटेंट जो है वो किक इन करता है, क्योंकि मरने वाले की टैक्स रिटर्न इमीडिएटली ड्यू हो जाती है। विद इन 6 मंथ्स मरने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके लिए साल के एंड का वेट नहीं करना होता। तो जो आपका अकाउंटेंट है वो आपके टैक्स फाइल करता है, जिस किस्म के भी आपके आउटस्टैंडिंग टैक्स हैं वो आपने पे करने हैं। आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो भी आपने पे करना है। इसके बाद अगर जो बचता है वो उसमें से भी आपके मरने वाले के तमाम जो है वो लोन्स पे किए जाते हैं। जब लोन्स की बात होती है तो लोन की कोई भी शक्ल हो सकती है। कनाडा में मोस्टली लोगों के पास कुछ घर होते हैं, तो घरों के ऊपर मॉर्गेज होता है, तो मॉर्गेज इज आ लोन। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये भी मैंने बहुत सुना है कि लोग समझते हैं कि किसी की डेथ हो गई तो उसके सारे लोन माफ हो गए। नो भाई, ऐसा नहीं होता। किसी का कोई लोन माफ नहीं होता। तो गवर्नमेंट है वो उसके तमाम लोन्स आपने माफ कर पे करने होते हैं, जिसमें से आपका मॉर्गेज का लोन है, जिसमें आपका हो सकता है कार लोन हो, आपका क्रेडिट कार्ड्स हो, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो। हर किस्म का लोन है। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, स्पेशली भाई जो हैं, उनके लिए मैं एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ये हर हर मुसलमान का एक अपना है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपने अगर अपनी बीवी का हक महर पे नहीं किया तो इस्लाम में वो भी लोन कंसिडर किया जाता है। कैनेडियन लॉ में उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि भाई एज अ मुसलमान ये भी एक हक महर भी एक लोन की शक्ल में है जो पे किया जाता है कुछ। और इसके अलावा ज़कात जो है वो भी एक लोन की शक्ल है, उसको भी पे करने की जरूरत होती है। लेकिन अगेन दैट्स एज अ साइड नोट, और ये सिर्फ हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं इस चीज को कंसिडर करते हैं। अगर आप नहीं भी कंसिडर करते एज अ मुस्लिम, दैट्स योर कॉल। इसमें मैं मेरा कोई किसी लॉयर का कोई इनपुट नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, तो इसलिए जो मेरे क्लाइंट्स मुस्लिम क्लाइंट्स होते हैं वो जब हमारी इनपुट मांगते हैं तो हमें ये चीजें उनको हम पॉइंट आउट कर देते हैं। बाकी करना ना करना वो जो विल बनाने वाला है उसकी उसकी एक माइंड सेट होता है, उसने उसको कैसे लेके चलना है। जी, जब ये चीजें पे हो जाती हैं उसके बाद जो एसेट बचता है
जो अमाउंट बचती है वो एक्चुअली डिसीज्ड का एसेट होता है जो डिवाइड करना होता है। अब देखिए, जिस दिन आप विल बना रहे हैं उस टाइम पे कोई भी ह्यूमन बीइंग ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि उसके मरने के टाइम पे उसके एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है $10 हो सकता है 10 मिलियन हो और बिलियन हो, जो बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और कुछ भी नहीं रह सकता। तो इसलिए जब विल बनाने के टाइम पे हम कंसिडर करते हैं कि जो मरने वाला है उसके जो छोड़ के जाएगा उसको हम 100% कंसिडर करते हैं। अब इस 100% में आपकी तमाम रियल प्रॉपर्टीज, आपकी गाड़ियां, आपकी ज्वेलरी, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज है जिसकी कोई डॉलर वैल्यू है, आपके बैंक बैलेंसेस, आपके अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो भी आपका एसेट है एक्चुअली। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो हर वो चीज जिसकी कोई डॉलर वैल्यू है वो आपका एसेट कंसीडर किया जाता है। तो जब किसी की डेथ होती है तो उन तमाम एसेट्स को बेच के या उनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेके तो उसको फिर डिवाइड किया जाता है। अब जब आपके एसेट्स की एक जब एसेट्स को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें से आपके तमाम एग्जिस्टिंग उस वक्त के जो लोन्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, उसको निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मरने के टाइम पे आपने 1 मिलियन, आपका घर है जो को 1 मिलियन का है और उसके ऊपर 5 लाख का मॉर्गेज है और उसके ऊपर आपका कोई 1 लाख के दूसरे लोन्स हैं, तो इसका मतलब है आपके एसेट की वैल्यू सिर्फ 4 लाख है, ना कि 10 लाख, क्योंकि आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो आपके एसेट्स में से डिडक्ट कर दी जाती हैं। और इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको हम ऐसे कैलकुलेट क्यों करते हैं, जैसे चूंकि इसमें हम चल रहे हैं। तो आप जब अपने एसेट्स को सोच लेते हैं कि दिस इज माय एसेट, तो फिर आप लोगों ने हमें ये जिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये आ जाता है कि अब आपने ये एसेट्स को डिवाइड कैसे करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द विल प्रोसेस, कि आपने अपने लॉयर को बताना है कि आपने अपने एसेट्स को डिवाइड कैसे करना है। जब एसेट्स की डिवीजन की बात होती है तो देखिए, डिवीजन के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, और हर किस्म की डिवीजन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ कुछ उसके नुकसान तो नहीं कहूंगा, कुछ उसके प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, दोनों मिलजुल के होते हैं। मैं आपके साथ सिर्फ 2 एग्जांपल शेयर करूंगा इस वक्त। बाकी आप किसी तरह से भी अपने एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो कुछ बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें इस्लामिक तरीके से एसेट डिवाइड करने हैं। तो इस्लामिक तरीके में तो कोई बाद में डिस्कशन ही नहीं बचती। देयर आर सम सेट रूल्स कि किसके कौन किस में किसको क्या मिलेगा, और वो उसकी फैमिली के हिसाब से डिवीजन होती है। और जब जब भी आप किसी अपने लॉयर के पास जाएं और आप इस्लामिक विल बनाना चाहें तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से जरूर बात करके जाएं। क्योंकि मैंने 20 साल में ये देखा है कि बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे पास आते हैं जिनकी बहुत सारे लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है इस्लाम को इंटरप्रेट करने के लिए। और याद रखिए, लॉयर्स जो हैं वो स्कॉलर्स नहीं हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं हैं। वो आपकी जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे उसके मुताबिक डिवाइड कर देंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम, मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ अपने स्कॉलर से डबल चेक कर लें, ताकि एक रोजे क्यामत वो चीज हमारे सर पे ना आए कि वो पता हो कि इंसान ने जिसने की ना मरने वाले को प्रॉब्लम हो कि जी मैंने एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लिया है और हम उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवीजन होती है तो मैं आपके साथ 2 एग्जांपल्स करता हूँ। कई मोस्टली जो स्टैंडर्ड किस्म की डिवीजन कनाडा में लोग करते हैं, हस्बैंड कहते हैं जी जब अगर मेरी डेथ हो जाए तो सब कुछ वाइफ को दे दीजिए, वाइफ कहती हैं जी अगर मेरी डेथ हो जाए तो हर चीज हस्बैंड को दे दीजिए, और फिर वो कहते हैं जी हम दोनों की डेथ हो जाए तो एवरीथिंग शुड गो बिटवीन ओवर चिल्ड्रन। कुछ लोग इक्वली कर देते हैं, कुछ वहां पे आके इस्लाम को अप्लाई कर देते हैं कि जी बेटी को आधा मिले, बेटी को डबल मिले। तो एक सेट ऑफ डिवीजन तो ये बन जाता है। और दूसरा सेट ऑफ डिवीजन वो लोग कहते हैं जिन्हें जी मेरे अगर एक बीवी है और 3 बच्चे हैं तो मैं चाहूंगा एक ही शॉट में चारों को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। या बीवी कहती है जी मेरे 3 बच्चे, एक हस्बैंड है, जब मेरी डेथ हो जाए तो जो भी मेरे पास है सब कुछ इन चारों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। दिस इज नो 2 स्टेप डिवीजन, ओनली 1 स्टेप डिवीजन। ठीक है, जो पहली पहली काइंड की डिवीजन है उसमें एक छोटा सा चैलेंज ये होता है, जैसे आप अगर हस्बैंड कहे कि बीवी को दे दें, बीवी कहे हस्बैंड को दे दें, तो अगर हस्बैंड बीवी की डेथ पहले हो जाती है तो हर चीज हस्बैंड के नाम हमें ट्रांसफर करनी होती है विद इन 1 ईयर। लेकिन उसी विल में मियाँ बीवी का ये भी एक होता है कि अगर दोनों की डेथ हो जाए तो हर चीज बच्चों को मिले। मतलब ये कि अल्टीमेट गोल उनका ये होता है कि एवरीथिंग शुड गो टू द किड्स इक्वली।
लेकिन अगर बीवी की डेथ हो गई है और हस्बैंड ने उसकी डेथ के बाद सारी जायदाद लेके दूसरी शादी कर ली है, तो इसका मतलब है जो नया पार्टनर लाइफ में आ रहा है वो आधी जायदाद ले जाएगा और बच्चों तक आधी जायदाद पहुंचेगी सिर्फ। और ये सेम रूल वाइफ को भी अप्लाई करता है। तो ये इस किस्म का ये इसमें प्रोसेस में एक इनहेरिट रिस्क है जिसको आप विल में कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारी बहनें आती हैं, वो जब उनसे ये बात होती है वो पहली बात ये करती है, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं ये लिखूंगी अगर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं होता। विल में आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि शादी करना एक जायज का एक लीगल काम है। तो लीगल काम को करने के लिए आप किसी को उसकी सजा नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक किस्म की सजा है कि भाई तुमने दूसरी शादी कर ली तो मैं तुम्हें जायदाद दे दूंगी। तो इसलिए ये इस किस्म की चीज विल में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन हाँ इसको कंट्रोल करने के और तरीके होते हैं, वो केस टू केस वेरी करते हैं। तो एनीवेज आपकी मर्जी है, डिवीजन जो आपने करनी है वो घर से सोच के जाइए, आपस में डिस्कस करके जाइए, ताकि आप अपने लॉयर के साथ ओपनली डिस्कस कर सकें। कुछ लोग कुछ लोगों का ये भी मैंने बहुत देखा है यहाँ पे, कि अगर किसी एक बच्चे ने उनको उनकी बड़ी खिदमत की है, वो कहते हैं जी हम वी लव दिस चाइल्ड, उसको कुछ परसेंटेज ज्यादा दे देते हैं। या कुछ बच्चे, जी हमें तो 10 साल हो गए, हमारे बेटी ने हमें पूछ के वापस पूछा नहीं है, तो मैं उसको कुछ नहीं देना चाहता अपनी जायदाद में से। ये भी मैंने देखा है, होता है। लेकिन याद देखिए इस किस्म की जो डिवीजन्स होती हैं जो कि अनइक्वल किस्म की होती हैं, सरप्राइजिंग डिवीजन होती हैं, वो चैलेंजेबल होती हैं कोर्ट में। वो बात की बात है कोर्ट उसका डिसीजन क्या करेगा, लेकिन जिसको कम मिलता है वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, अगर अगर चाहे तो, कि भाई ये डिवीजन जो है उसके राइट्स के अगेंस्ट की गई है, इसलिए इस डिवीजन को नल एंड वाइड करा दिया जाए। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द विल प्रोसेस, अब विल में जो है हम इस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डिवीजन को, इसको हमें सेकंड जनरेशन तक भी लेके जाना होता है। सेकंड जनरेशन में जाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इसमें हमारा ये इस तरह से हम पोज करते हैं कि अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता आपके किसी बच्चे की आपकी लाइफ में डेथ हो जाए, लेकिन उस बच्चे के अपने बच्चे है उसकी डेथ के टाइम पे, तो क्या आप अपनी विल में ये आपके डेथ के बाद आप चाहेंगे कि आपके मरने वाले बच्चे के बच्चों को उसका हिस्सा मिले, या जो आपके अपने बच्चे बचे हैं सब कुछ उनको वापस चला जाए? तो ये आपने हमें बताना होता है कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को विल में डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते, चाहे वो है चाहे नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं होता विल बनाने के टाइम पे। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे तो बच्चे ही नहीं है। ठीक है, बच्चे नहीं हैं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन वो तो बच्चों के बच्चे नहीं है, लेकिन कल को बच्चों की शादियां होनी होती हैं, बच्चे होने होते हैं, क्योंकि विल जो होती है ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर रोज आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप विल चेंज करने आएंगे, लॉयर आपको सेम फी दोबारा चार्ज करने का कर सकता है। हम खुद चार्ज करते हैं, अगर कोई लॉयर आता है, क्लाइंट आता है विल चेंज करने के लिए, तो उसका तमाम प्रोसेस दोबारा किया जाता है जो विल बनाने के लिए किया जाता है। तो वी चार्ज द सेम फी वेन एवर यू अमेंड अ विल। तो विल जो होती है वो लंबे अरसे के लिए बनाई जाती हैं, ताकि उसमें कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म पे उसको चेंज ना करना पड़े। तो कमिंग बैक टू द विल प्रोसेस, तो इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें विल में ये होता है, अमूमन उसको हम बोलते हैं डिजास्टर सिनेरियो। डिजास्टर सिनेरियो का मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता फैमिली के तमाम लोग बेनिफिशरी जो है किसी एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाए, मियाँ बीवी बच्चों की किसी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी जायदाद के साथ क्या किया जाए? हाँ, यहाँ पे आके भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ अप्रोच होती है। और यहाँ भी आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। समटाइम्स लोग कहते हैं जी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारी जायदाद के दो हिस्से कर दें, एक हिस्सा जो है वाइफ के रिश्तेदारों को दे दें और एक हिस्सा जो है हस्बैंड के रिश्तेदारों नहीं, सॉरी, बहन भाइयों को, आई एम सॉरी। एक हिस्सा वाइफ के बहन भाइयों को इक्वली दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और एक हिस्सा हस्बैंड के बहन भाइयों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं उस वक्त, कुछ लोगों को डोनेशन करने का एहसास होता है कि हमें डोनेशन भी करना चाहिए, तो वो मुख्तलिफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तलिफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तलिफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको दे जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जायदाद दे दी जाए। और कुछ लोग इसको स्प्लिट भी कर देते हैं, कुछ हिस्सा अपना डोनेशन में दे देते हैं, कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं जी मेरा एक भाई है, वो गरीब है, बाकी सब बहन भाई जो है वेल ऑफ है, आप सब कुछ उस भाई को दे दीजिए। तो एनीवेज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट। और ये जो मैंने आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क बताया है, ये एक
क्वेश्चनियर की शक्ल में भी आप इसको देख सकते हैं। जब आप विल बनाने के लिए जाएं तो आप इनमें से क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं जो आप आपने अपने लॉयर से करने हैं कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको क्या चीज सूट करती है। तो अब ये तो सारा हो गया विल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो एंड में मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। एक एक जो साइड नोट्स है वो आपके लिए मैं बता दूं। विल जो होती है हमेशा किसी के मरने के बाद एक्टिवेट होती है। कोई खोल के आपकी विल पढ़ भी ले, देख भी ले, तो उससे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो सेकंड चीज हम बात करेंगे वो है पावर ऑफ अटर्नी की। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी से जाने से पहले एक दो चीजें मैं आपको आपके नॉलेज के लिए और बता दूं। देखिए विल जो है उसमें जायदाद, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि आपकी जो एसेट्स हैं वो डिवाइड होते हैं। जब आप किसी की डेथ होती है तो उसके मरने के बाद हमें कोर्ट में जाके एक प्रोबेट सर्टिफिकेट लेना होता है, और जब प्रोबेट सर्टिफिकेट जो होता है उस पे 1.5% प्रोबेट फी लगती है, यानी गवर्नमेंट फी है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू 1 मिलियन है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की फी जो है वो $15,000 गवर्नमेंट की फीस है। और ऑफ कोर्स हमारी भी एक फी होती है जो उस हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं चीजें। वो फीस भी आपको पे करनी पड़ती है टू प्रोसेस द विल, टू गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टी। ये मरने के बाद के काम है, वो भी हम उसको डील करते हैं, लेकिन ये भी एक फुल फ्लैज टॉपिक है। कभी अगर आपको आप समझे कि इसको ये इम्पोर्टेंट है तो हम डेफिनेटली इस टॉपिक को भी किसी फ्यूचर सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। और जब ये किसी को की डेथ हो जाती है तो प्रोबेट फी पे करके उनके लॉयर जो है एक अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टी लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट ट्रस्टी लेते हैं। और जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है तब जो ट्रस्टी होता है दैट ट्रस्टी स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डिसीज, तो फिर उसके बाद वो तमाम एसेट्स को अपने कंट्रोल में लेके तो उनको डिवाइड करता है। विल जो होती है एज आई टोल्ड यू, विल हमेशा एक उसकी सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी बनती है। जो हमारे ऑफिस की प्रैक्टिस ये है कि हम क्लाइंट को दे देते हैं, कुछ वकील अपने पास रख लेते हैं। आई नो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी वकील ने आपकी विल अपने पास रखी हुई है तो मरने के बाद आपके बच्चों को दे हैव नो चॉइस बट टू चेज दैट लॉयर एंड गो टू देम। लेकिन अगर हम जैसे हम अपने हर क्लाइंट को उसकी विल उसको दे देते हैं कि अगर उनके मरने के बाद उनके बच्चों को उसी लॉयर को चेंज ना करना पड़े, उनके पास उनकी ओरिजिनल विल हो, ताकि वो कोर्ट में सबमिट करवा के किसी भी विल के क्लाइंट लॉयर के थ्रू उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और विल की हमारे पास सिर्फ एक कॉपी होती है। यू शुड कीप द विल एट सम सेफ, वेरी सेफ प्लेस। और जहां भी रखें वो आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी मियाँ बीवी या बच्चों को या जिसको भी आपने ट्रस्टी बनाया है उसको जरूर बताएं कि आपने विल कहाँ रखी है। अगर किसी वजह से विल गुम हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके बच्चों को या बेनिफिशियरीज को विल की असल नहीं मिलती, देन दे हैव टू गो बैक द सेम लॉयर जिसने विल बनाई थी। तो वो लॉयर जो होता है, बाय लॉ ही हैज अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अब जब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इशू हो जाती है तो दैट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द ओरिजिनल विल। कोर्ट में उसको किया जा सकता है, चीजों को चाहे उसको अप्लाई किया जा सकता है। अनदर साइड नोट, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बहन भाई मेरे पास बात भी करते हैं कभी कभी और आते भी हैं, जी हमने तो घर में विल लिख के साइन करके रख दी हुई है, हाथ से लिख दी है, या हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके एक डॉक्यूमेंट हमने लिख के रख दिया हुआ है, या हम XYZ मस्जिद में गए थे वहां पे पड़ी हुई थी ये कॉपी, उसमें हमने अपने नाम फिल किए हैं और हमने रख लिए हैं। और भाई ये काम जो आप करते हैं दैट्स फाइन, यू गाइस कैन डू दैट। लेकिन ये याद रखिए, आप अपने $500-700 बचाने के खातर आप अपने बच्चों को या अपनी ट्रस्टीज के हजारों डॉलर और लगवा रहे हैं और उस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। यहाँ पे विल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें आपने लिख दिया आपने किसको क्या देना है। देयर आर मेनी सर्टन प्रोटोकॉल्स। हमारी जॉब ये होती है कि हम लोगों की जो विश होती है, चाहे वो इस्लामिक विश है या नॉन इस्लामिक विश है, उस विश को हम कनेडियन लॉ के साथ मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ताकि वो कोर्ट में चैलेंजेबल होने की उसकी मिनिमम से मिनिमम पॉसिबिलिटी हो। नॉट ओनली दैट, उसके जो एग्जीक्यूशन के रूल्स हैं वो कंप्लीट हुए हों। हमारे पास मेरे पास आए हैं कुछ क्लाइंट ऐसे जो अपने माँ बाप के मरने के बाद मेरे पास एक ऐसा पीस ऑफ पेपर लेके आए जो उन्होंने गूगल से किया हुआ है, और उसमें इतने इश्यूज हैं उस डॉक्यूमेंट में कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि उसमें एक एक डॉक्यूमेंट में तो मैं सरप्राइज हो गया देख के कि वो उन्होंने किसी मस्जिद से लिखा हुआ लिया हुआ था, तो मस्जिद वालों ने अपना नाम उसमें डाला हुआ था।
कि इसके एसेट का एक किस्सा हमें मिलेगा। मैंने कहा बच्चों को मैंने पूछा, मैं कहा तुम्हें पता था ये? कहता नहीं जी, अब्बा गए थे, अब्बा ने वहां से कॉपी ली, उसको साइन करके हमें दे दिया। अब्बा ने पढ़ने की कोशिश नहीं की कि भाई वो चाहते ना चाहते हुए मस्जिद को एक बड़ा हिस्सा देके जा रहे हैं। मुझे आफरीन है ऐसी मस्जिदों पे, अल्लाह मियां हम सबको हिदायत दे कि जो लोगों को बताए बगैर अपनी मस्जिद का नाम उसमें डाल के उनको देते हैं। ये नहीं आपकी बिल बन गई, आपको किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो खैर ये बड़ी तकलीफ दे चीज है ये, कि जिन बच्चों का वो हिस्सा है उनको बेशक माँ बाप की उनकी यही होती कि बच्चों को दो, लेकिन वो बेचारे अनजाने में कुछ डॉलर्स बचाने के चक्कर में वो उस प्रोसेस से डाइवर्ट करके उधर चले जाते हैं। नॉट ओनली दैट, कुछ विल्स मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं हुई थी। अब जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगर हम प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड विल का लेट्स से अगर हम $5,000 चार्ज करते हैं उसको प्रोसेस करने का, जो इम्प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई होती है उसमें हमारी फी भी डबल हो जाती है, क्योंकि हमें जजेस जो है उसको सेटिस्फाई करना होता है। जजेस के साथ जाके हमें बहस करनी होती है, हमें केस लॉ निकालना पड़ता है, हमारा काम डबल से ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को रिकंसिडर किया करें। जो चीज कुछ डॉलर्स के बाद यूज करने के बाद आपके बच्चों के लिए आसानी पैदा करे, उसको करें, बजाय के इन चीजों को नजरअंदाज करने के। चलें जी, ये तो ये पार्ट हो गया था। मैं क्विकली, हमारे पास मुझे पता है 5-7 मिनट है, मैं पावर ऑफ टर्नी पे बात करूंगा। पावर ऑफ, जैसे मैंने बताया कि विल किसी के मरने के बाद एक्टिव होती होती है। व्हाट इफ, खुदा ना खास्ता, अगर किसी शख्स की कुछ मेंटल हालत ऐसी हो जाए या फिजिकल हालत ऐसी हो जाए कि वो ही इज अनएबल टू मेक एनी डिसीजन, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। फिजिकली कई बार लोग कोमे में भी चले जाते हैं और कई कई साल कोमे में रहते हैं। मेंटली का तो आपने बहुत सारे लोग आपने इर्द गिर्द देखे होंगे, उनको डेमेंशिया हो गया, लोगों को अल्जाइमर के भी इश्यूज हो गए हैं, कोई और इश्यूज हो गए हैं, लेकिन वो जिंदा है और उनके नाम पे जायदादें भी हैं और उनके नाम पे और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो जिंदा है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो बेशक जिंदा हैं, लेकिन ना वो अपने घर को बेच सकते हैं, ना वो कोई मोर्गेज ले सकते हैं, ना वो कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उनकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम करना हो जो कि आपको जरूरत है, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली गोन, फिर क्या करेंगे आप लोग? आपके पास कोई अगर तो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है अपनी लाइफ में किसी को, देन यू सेव अ हेल ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर ऐसा नहीं है तो जो उसके रिश्तेदार हैं उसको कोर्ट में जाके कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा, और इट्स एक्सपेंसिव एंड लेंथी वे। और उस कोर्ट ऑर्डर की बेस पे फिर वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में ही किसी अपनी बीवी को, या बीवी ने अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी आप लोगों ने दिया हुआ है, तो वो आपकी लाइफ में ही आपके लिए प्रॉपर्टी को डील कर सकते हैं। और इसमें इसमें भी विल पावर ऑफ अटर्नी में भी दो तरह के पावर ऑफ अटर्नी हम बना देते हैं प्रॉपर्टी के। एक तो ऐसा पावर ऑफ अटर्नी होता है जो सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब देने वाला जो है डॉक्टर्स उसको मेंटली इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होता। और कुछ पावर ऑफ अटर्नी जो होते हैं वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है। वो मियाँ बीवी मुंह एक दूसरे को देते हैं। कई दफा बीवी ट्रैवल कर रही होती है या मियाँ ट्रैवल कर रहा होता है, तो कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाए तो वो ले सकते हैं। तो इसके साथ एक और पावर ऑफ अटर्नी होता है जो हेल्थ का होता है। आपने भी कई दफा शायद सुना हो कि किसी को लाइफ सपोर्ट पे लगाया गया और डॉक्टर आके पूछते हैं, हाँ जी इसकी लाइफ सपोर्ट कितनी देर तक रखनी है। कई बार डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ही दैट्स यूजलेस एफर्ट। तो लेकिन डॉक्टर किसी का डिसीजन मांगते हैं उस वक्त कि भाई हाँ जी बताएं, यहाँ पे साइन करें। तो अगर तो मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी जो है वो उनको एक दूसरे को पावर ऑफ अटर्नी देने की जरूरत नहीं है हेल्थ का। डॉक्टर्स कंसिडर देम एज देयर अटर्नीज। लेकिन अगर आपने अपने हेल्थ का पावर ऑफ अटर्नी अपनी बीवी या अपने मियाँ के अलावा अपने किसी बच्चे को, किसी रिश्तेदार को देना है, देन यू नीड द पावर ऑफ अटर्नी फॉर द हेल्थ। कई दफा ये भी होता है कि किसी मियाँ बीवी में से कोई एक रह जाता है और उनके दो एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो उस सूरत में भी आई विल सजेस्ट हेल्थ का पावर ऑफ अटर्नी जरूर दें। अदरवाइज उस वक्त जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने हो सकता है आपके बच्चे आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो एक बच्चा कहे नहीं जी आई लव माय डैड, आई डोंट वांट हिम टू गो। दूसरा कहे कि नहीं जी वो बहुत तकलीफ में है, इनको जाने दें। तो वहां पे फिर एक इशू खड़ा हो जाएगा कि भाई किसकी बात सुनी जाए। और ये पावर ऑफ अटर्नी को कई दफा लोग लिविंग विल भी बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब पावर ऑफ अटर्नी ही होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, until unless something someone has some other understanding।
जी, आई बिलीव ये एक बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन सेशन था, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि मेजर चीजें मैं सारी आपसे डिस्कस कर लूं। लेकिन याद रखिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं जो कि हर शख्स के अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होते हैं। तो आई बिलीव मैं अभी जो है वापस अलीम भाई को देता हूँ माइक। अलीम भाई, आप प्लीज टेक केयर फ्रॉम हियर, और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ अगले 10-15 मिनट। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए, लेकिन एक मिनट एक बात याद रखिएगा, किसी का कोई बहुत ही अगर पर्सनल सर्कमस्टांसेस का क्वेश्चन होगा, मैं उसको सुन जरूर लूंगा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसको जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये पब्लिक फोरम जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो हर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, अगर कोई जनरल क्वेश्चन है, आई एम हियर टू आंसर दोस क्वेश्चंस, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। जी अली भाई, प्लीज अब ओवर टू यू। जी आदिल साहब, हमारे पास जो है वो मोहम्मद आमिर आगा साहब हैं जो सवाल करना चाह रहे हैं। आगा साहब, आप अनम्यूट कर लें अपना वो जी और सवाल अस्सलाम करें। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हम ट्रस्टी के तौर पे किसी मस्जिद को नॉमिनेट कर सकते हैं अलोंग विद अपनी वाइफ या अपने बच्चे, ताकि वो इस्लामी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो ना प्राइवेट विल बनाते हैं और आप वाली विल वो ऑथेंटिकेटेड होती है, तो क्या वो विल आप रजिस्टर करते हैं किसी जगह पे? ये दो सवाल हैं, जजाकल्लाह। जी देखिए, आई विल मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप किसी मस्जिद को ट्रस्टी बनाएं, क्योंकि इस्लामिक डिवीजन के लिए आपने विल के अंदर लिखना है, वो मस्जिद पे नहीं छोड़ना कि आपने क्या करना है। द बेस्ट वे इज, जब आप विल बनाने लगे तो अपनी मस्जिद से जाके पहले बात कर ले कि मेरी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरे माँ बाप हैं, तो मुझे बता दीजिए इस्लामिक तरीके से क्या डिवीजन होती है। तो वो आप अपने लॉयर को बताइए कि मेरी डिवीजन ये कर दें। जब आपकी डिवीजन उस तरह से हो गई तो फिर आपको किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मस्जिद को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप अपने बीवी के या अपने बच्चों के हाथ बांध रहे हैं। वो मस्जिद वाले या जो भी होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, उनकी हर प्रोसेस में उनकी इनपुट जाएगी। और मस्जिद को आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जब करेंगे, दे मे चार्ज यू अ गुड मनी टू योर स्टेट टू डू दिस जॉब। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और लेकिन दैट्स ऑफ कोर्स लास्ट डिसीजन इज ऑलवेज क्लाइंट्स, लेकिन सजेशन मेरी तरफ से सजेशन नहीं है कि आप किसी मस्जिद को इसमें एज अ ट्रस्टी डालें। और जहां तक दूसरा क्वेश्चन है आपका, विल की रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। विल कहीं रजिस्टर नहीं होती, विल सिर्फ सबमिट होती है। आप रजिस्ट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं डेथ के बाद, इसलिए उसकी किसी जगह पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। जो मैं बात कर रहा था, वो मैं एग्जीक्यूशन के हवाले से बात कर रहा था उसकी, और उसके कंटेंट्स के हवाले से बात कर रहा था कि उसको विल के कंटेंट्स जो होते हैं उसको लीगली ड्राफ्ट होना चाहिए और उसकी एग्जीक्यूशन भी लीगली होनी चाहिए। Thank you, Adil साहब। Haris साहब, you would like to ask something? Your raised hand, so please ask. Unmute yourself and ask. जी जी, जज़ाकल्लाह। आई थिंक आदिल भाई, बहुत जबरदस्त सेशन है आपका, बहुत आपने जबरदस्त नॉलेज दी है और बहुत थैंक यू। यूजफुल नॉलेज है। और आपका मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगी कि आपने जो है मतलब एक अनबाइज्ड रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरा आपसे वो ये है कि बीइंग इन कनाडा के लॉ के हिसाब से हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या किसी विल किसी लॉयर से बनवाएँ, या मैं आजकल इंटरनेट पे बड़े अच्छे-अच्छे फॉर्मेट पढ़े हुए हैं, मैं कोई फॉर्मेट लेके अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके खुद उसको अपने विल को बना लूँ और कंट्रोल है मेरे पास कि मैं उसको अपडेट भी कर सकता हूँ और मैं जाके नोटरी वगैरह से साइन करा लूँ। वुड दैट बी एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? जी देखिए, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं कमेंट इसलिए नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या लिखे होंगे, लेकिन दैट इज आई विल से दैट इज नॉट सेफ। मैं सिर्फ ये इतनी बात करूंगा, इट्स नॉट सेफ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये विल कोर्ट में आपके मरने के बाद जाएगी। अगर वहां पे कोई लीगल इशू इसमें निकल आया, कोई एग्जीक्यूशन का विल निकल आया, तो आप तो निकल लिए उस वक्त तक, फिर आप वापस नहीं आ सकेंगे उसको फिक्स करने के लिए। वो आपके बच्चों को या उस वकील को जिसके पास भी आ जाएंगे उसी को फिक्स करना है। और दैट्स एज आई मेंशन, मेरी कन्वर्सेशन में बताया कि उसमें ऑफ कोर्स हर लॉयर का जितना भी टाइम लगता है उसके हिसाब से उसके चार्जेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो अगेन मैं वही सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप चाहें जरूर बनाएं। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो आदिल साहब इसको बस नोटराइज कर दें।
मैं उनसे सबसे पहली बात ये करता हूँ, मैं कहता सर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नोटराइज करने की, लेकिन उसके ऊपर हम इतना बड़ा एक रेड कलर का ठप्पा लगा देते हैं। बीइंग अ लॉयर मेरी जिम्मेदारी है जिसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये विल ना मैंने पढ़ी है, ना मैंने इसके ऊपर इन साहब को एडवाइस दी है, इसलिए इसकी लीगैलिटी का मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। जब वो कोर्ट के सामने जाती है, कोर्ट अगर देख भी लेता है वकील ने नोटराइज किया और साथ ठप्पा भी लगाया, दे नेवर कम बैक टू अस कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलत वकील एग्जीक्यूशन की है, तो उसकी जिम्मेदारी विल बनाने वाले के ऊपर है, वकील की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। Harith Saab, two comments I received. Harith Saab, have you get the answer? No, I'm done. Thank you very much. I think it's fine. Thank you. So Hassan Syed Sarfraz asking something. He said, can we have one power attorney with have multiple, like wife and kids on same power attorney? Yes. Okay. And also, I think Faisal raised hand. Faisal, you would like to ask, you can ask yours. Open your mouth, unmute your microphone and you can ask. Faisal Saab? Okay, then I would like to Arshad Nazar Saab, you can जी ask. अस्सलाम वालेकुम, सॉरी Ask. अली, इसलिए तो आदिल साहब शुक्रिया बहुत बहुत। एक कमेंट और एक क्वेश्चन है। कमेंट जस्ट टू सप्लीमेंट फॉर व्हाट यू सेड अबाउट द मसाजिद, क्योंकि नॉट ऑल मसाजिद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल मसाजिद आर नॉट सेट अप टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। आई एम वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्जिद एज वेल। तो मतलब ये सर्विस के लिए मसाजिद सेटअप है ही नहीं। शायद कोई मस्जिद हो जो कर रही हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है मस्जिद के पास जाना, वो और फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, दे मे नॉट बी क्वालिफाइड टू हैंडल दिस एज वेल। अच्छा, एक तो ये हो गया। माय क्वेश्चन इज कि विल इज डेफिनेटली वन, बट इज इट पॉसिबल या इज इट बेटर टू क्रिएट अ ट्रस्ट? लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक ट्रस्ट बना दें, कॉर्पोरेशन ट्रस्ट बना दें, देन पुट ऑल योर एसेट्स अंडर इट। देखिए, विल के अंदर आप ट्रस्ट ही बना रहे हैं। जो हम विल बनाते हैं ना, उसके अंदर एक लीगली ट्रस्ट बन जाता है, लेकिन वो ट्रस्ट सिर्फ उस टाइम तक होता है जब तक उसके एसेट्स की डिवीजन नहीं हो जाती। अगर अगर मरने वाले का कोई बच्चा 18 साल से कम है और वो बेनिफिशियरी है विल के अंदर, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। लेकिन लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उस बात को पहुंच चुका हूं जो आप जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं। मुझे पता है ये जो मैंने आंसर दिया ये भी आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब देता हूं। लेट मी रीफ्रेज योर क्वेश्चन। मुझे बताइएगा अगर इफ आई एम रॉन्ग। आप ये बात कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी तमाम एसेट्स का एक ट्रस्ट बन जाए ताकि आपके बच्चों को उसके ऊपर लंबा चौड़ा टैक्स ना पे करना पड़े। एम आई राइट? जी, एक तो यही है, और ये मरने के बाद ही पहले ही ट्रस्ट फॉर्म कर ले, ऐसा पॉसिबल है? पहले ट्रस्ट आप जो मर्जी करते रहे, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं विल के हिसाब से पॉइंट से बात करूंगा सिर्फ, ठीक है? देखिए, हम लोग जो हैं विल क्यों बनाते हैं? हम विल इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे एसेट्स जो हैं वो बगैर किसी प्रॉब्लम के स्मूथली हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम लोग विल बनाते हैं, राइट? और जहां तक आपके क्वेश्चन का कंसर्न है, जो कि यू आर नॉट द ओनली वन, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आए हैं। वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि टैक्स हमें कम से कम देना पड़े और हम एक ट्रस्ट बना दें ताकि हमारे बच्चों को टैक्स कम से कम देना पड़े। देखिए, जो ट्रस्ट है ना, ये एक टैक्स डेफर टूल है। इट्स नॉट अ टैक्स सेविंग टूल, टैक्स डेफर टूल। क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी, जब तक एसेट जो हैं आपके ट्रस्ट में पड़े रहेंगे, यस ऑफ कोर्स देयर इज नो टैक्स, लेकिन जैसे ही उस ट्रस्ट से बाहर निकलेंगे उस पर टैक्स पड़ेगा, राइट? और मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी बंदा ये चाहेगा कि आपके मरने के बाद आप 20 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाल जाएं और आपके बच्चे बजाय वो एसेट आपको लेके एंजॉय करने के, वो आपको याद ही करते हैं कि अब्बा जी जाते जाते 20 साल के लिए ट्रस्ट बना गए हैं, हमें तो अब 20 साल बाद जायदाद मिलेगी। दैट इज नॉट द अप्रोच हम में से। हाँ, जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो लोग ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
वो लंबे चौड़े ट्रस्ट बना जाते हैं, एक खास पोर्शन अपनी जायदाद का एक लंबा सा ट्रस्ट बना जाते हैं अपने पोते पोतों के लिए, कि भाई हाँ मेरी आने वाली जनरेशन ने मुझे याद रखे कि दादा दादी जो नाना नानी थे वो हमारे लिए भी कुछ छोड़ के गए हैं, राइट। लेकिन हम जैसे एक मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, जिनके पास 1 2 3 4 घर हैं, जिनके पास उनके बच्चे उनको बच्चों को उनकी जरूरत है उनके बाद कि उनके, ताकि उनके बच्चे ग्रो कर सकें, तो उस शक्ल में आप अगर ट्रस्ट बना जाएंगे तो आप वो एसेट को ब्लॉक कर गए हैं कोई खास अरसे के लिए, तो वो एसेट पड़ा रहेगा उस ट्रस्ट में, ग्रो भी करता रहेगा, लेकिन आपके बच्चों को जब भी वो पैसा या एसेट ट्रस्ट में से निकालेंगे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जस्ट अ डिस्क्लेमर हियर, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल सजेस्ट कि आप अपने अकाउंटेंट से बात करें कि इसकी डीपली टैक्स इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। Thank you, अच्छा, Azhar. कोई है अनिल, Thank एक you. सवाल मैं कर सकता हूँ? हाँ Yeah, please. आदिल भाई, पूछना था कि अरशद आजम Akshay, जी Azhar? बोला है भाई। जी, मैं सवाल पूछूं? Yeah, जी please. पूछें, पूछिए. थैंक यू सो मच मती और अलीम भाई। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत सारे सवाल जो है वो क्लियर हुए। एक बात ये है पूछनी थी मुझे कि वो अब हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉमन है, मतलब ये कि वाइफ और मियाँ दोनों उसमें शरीक हैं, तो खुदा खास्ता अगर एक की डेथ हो जाती है तो जाहिर है कि उसका जो पोर्शन है वो तो लिक्विफाई नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर्टी है उसको तो बेच के बाकी लोग कहाँ जाएंगे, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे होगी? मतलब ये कि अगर बच्चे कहें या जो भी बाकी उसके बेनिफिशरीज हैं वो कहेंगे जी हमें पोर्शन चाहिए या हमें पैसा चाहिए, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? और दूसरी बात ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी और विल जो है, ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं या एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों चीजें हैं? थैंक यू सर। ओके जी, नो वरीज। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दूं। पावर ऑफ टर्नी और विल दोनों अलग अलग हैं। पावर ऑफ टर्नी और विल की डिवाइडिंग लाइन जो है वो डेथ है। डेथ से पहले पहले पावर ऑफ टर्नी होता है, मरने वाले के साथ ही पावर ऑफ टर्नी की डेथ हो जाती है, फिर विल टेक ओवर कर लेती है। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये और इनके उनके ऑफ कोर्स उनके चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। और आपका जो पहला पहला क्वेश्चन था, देखिए जो भी जायदाद मियाँ बीवी के दरमियान ज्वाइंटली होती है उसके ऊपर पहली डेथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपकी बीवी का घर है ज्वाइंट टेनेंट का वर्ड याद रखिएगा, ऑफ कोर्स आपके लॉयर ने आपको बताया होगा जब आपने घर खरीदा होगा, क्योंकि हम रियल एस्टेट का काम भी करते हैं इसलिए हमें इन चीजों का कनेक्शन का डीपली बहुत अच्छे से पता है। जैसे जब भी प्रॉपर्टी ऐसे ज्वाइंट टेनेंट मियाँ बीवी के दरमियान हुई होती है तो पहली डेथ के ऊपर वो विल के थ्रू जाती ही नहीं है। जो बचता है चाहे वो बीवी है चाहे मियाँ है वो ऑटोमेटिकली पूरे घर का मालिक बन जाता है। उसको सिर्फ हमारे पास आना होता है, डेथ जो जो बच गया है वो डेथ सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आता है, हम उस डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं, उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और गवर्नमेंट के सिस्टम में से रजिस्ट्री सिस्टम में से मरने वाले का नाम निकाल देते हैं। तो जो जिंदा बच जाता है उस वो 100% ओनर बन जाता है। और यही रूल अगर आपको पता हो, शायद आपने नोटिस किया होगा, यही रूल आपके बैंक अकाउंट में भी अप्लाई करता है। अगर आप लोग मियाँ बीवी ने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोला हुआ है विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, तब भी वो पहली डेथ के टाइम पे वो डिवाइड नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली जो बचने वाला है उसके पास रहता है। हाँ, जब दूसरी डेथ होती है चाहे वो मियाँ या बीवी है तब वो चीज जो है डिवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द विल। Thank you, Azhar. So थैंक यू। I think एक सवाल आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा जी। सेशन चल रहा है। हाँ, मुझे बस पूछना था कि अगर प्रॉपर्टी आपके पास जैसे पाकिस्तान में भी हो, कनाडा में भी हो, उसके लिए किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए? और सेकंड ये था कि कोई जैसे यहाँ पे इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक शरिया है, उसके हिसाब से जो विल की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैनेडियन लॉ के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट हो जाता है? जस्ट आप कोई विल बनाए और उसमें लिख दे कि जी इस्लामिक शरिया को फॉलो किया जाए। जी देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि विल जो आपकी बनेगी वो पाकिस्तान में नहीं चलेगी, यहाँ की विल, ठीक है। क्योंकि एक एक इंटरनेशनल जनरल लॉ ये है कि लेट्स से अगर आपने कनाडा में एक डॉक्यूमेंट बनाया है लीगली, बिल्कुल लीगली ठीक है यहाँ पे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से इलीगल है या इम्पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका मतलब ये नहीं कोई डॉक्यूमेंट गलत है, इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट वहां के लिए गलत है, ठीक। ठीक है। पाकिस्तान में
already Islamic law implement है for state purposes. वहां कोई भी मरता है, उसकी विल नहीं भी है तो ठक करके इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसकी डिवीजन कर दी जाती है। शरिया लॉ वहां पे है, इसलिए यहाँ की विल वहां पे नहीं चलेगी, ये पक्की बात है। अगर आपने पाकिस्तान की जायदाद की विल बनानी है तो आप पाकिस्तान जाएंगे, वहां के वकील से एक और विल बनवाएंगे। और ये भी एक चीज नोट कर लें, अच्छा एक क्वेश्चन, आप एक से ज्यादा विल्स भी बना सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका था, सॉरी वो मैं स्लिप हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट करेंगे जुबैर साहब, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कि वो यहाँ पे अप्लाई होता है इस्लामिक लॉ के हिसाब से, अगर बिल में डाल दिया जाए तो कनाडा के अंदर? असल में ना, मैं बातों में इसका जवाब आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लामिक लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, दिस इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट, लेकिन इस्लामिक लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप अपनी विल में लिख देते हैं इस्लामिक लॉ, यस दी ट्रस्टीज आर बाउंड टू अप्लाई द इस्लामिक लॉ। अभी जो हमारे एक भाई ने बात की थी कि मैं मस्जिद को कर लूं कि वो कर दें, तो यस, उस टाइम पे वो जो साहब होंगे वो अपनी मस्जिद या अपने जो स्कॉलरों से पूछ सकते हैं कि इस्लाम क्या कहता है, उसके मुताबिक डिवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, एक बात मैंने आपको दरमियान में बोली है कि जब अनइक्वल किस्म की डिवीजन होती है यहाँ पे, तो जिसको कम मिलते हैं वो विल को चैलेंज कर सकता है, Okay. क्या? तो इस सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी बेटी उठे और वो चैलेंज कर दे कि भाई मुझे आधा मिला है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि नहीं, जो विल बनाने वाले ने अपने होशो हवास में विल बनाई थी, कोई प्रेशर नहीं था किसी बेटे की तरफ से, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये है कि योर विल फ्लाई। लेकिन चैलेंजेबल चीजें हो जाती हैं। एक चीज और बताइएगा, ये छोटे बच्चे होते हैं अंडर 15 अंडर 10 इयर्स के, इनके हवाले से भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए इन द केस ऑफ कुछ सरपरस्ती या कोई खुदा ना खास्ता पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो कहाँ जाते हैं फिर? कुछ इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं आप। और ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना कि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको लॉयर के पास जाने की जरूरत है, कि ये भी एक बड़ा पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। तो हम, अगर कोई क्लाइंट हमें ये बताता है कि मेरे बच्चे 18 साल से कम है, तो हम विल में एक स्पेशल क्लॉज डालते हैं जो इस चीज को डील करती है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में से, आई एम सॉरी, एक और क्वेश्चन मैं एक और क्वेश्चन रेज करके आपको जवाब भी उसका दूंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत कॉमन देख रहा हूँ आजकल अनफॉर्चुनेटली, कि बहुत सारे लोगों के स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है, चाहे वो 18 साल से ज्यादा भी हो गए हैं, लेकिन मेंटली दे आर डिक्लेयर्ड इनकैपेबल, दे कैन नॉट हैंडल देमसेल्व्स। तो उनके लिए भी एक बहुत स्पेशल 2-3 पेजेस की क्लॉज बनानी पड़ती है हमें, ताकि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनके अपने ही बहन भाई उनका हिस्सा ना खा जाएं कि भाई तुम तो स्पेशल चाइल्ड हो, तुम्हारी केयर हम कर रहे हैं, तुम्हें रोटी दे रहे हैं और कोने में बैठ जाओ और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक बड़ी स्पेशल क्लॉज एक विल में डालनी पड़ती है, ताकि वो जो बच्चा है, एक तो उसके बहन भाई उसके साथ ज्यादती ना कर जाए उसकी लाइफ में, और दूसरा उसके जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, आपको पता है स्पेशल बच्चों को स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो स्पेशल बेनिफिट्स उनके कम ना हो उस एक विल की वजह से, कि विल में उनका हिस्सा छोड़ दिया गया, इनको इतने दे दो। अगर जनरली एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसका हिस्सा छोड़ देंगे तो उनके बेनिफिट ठक करके कम हो जाएंगे एकदम से। भाई तुम्हारे माँ बाप तो हमारे लिए $1 मिलियन छोड़ गए, अब तुम्हारे बेनिफिट गए। उसको हमें उस तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ता है कि उसके बेनिफिट्स भी ना जाएं, और वो बच्चा जो है या बच्ची जो है, उसका जो राइट है जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर खर्च हो पैसे, बजाय कि दूसरे यशी करते रहे उसके पैसों के ऊपर। Thank you. Actually, two more hands up here, so I would like to request Ashraf Saab, please unmute and ask question. Ashraf Saab.
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने मौका दिया मुझे। मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बता रहे थे कि हाउसेस जो हैं दोनों के नाम पर होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस के। तो मेरा ख्याल है कि मेरे केस में थोड़ा सा चेंज है कि मैंने अपने नाम पे ही लिया है हाउस, और एक और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है वो वाइफ के नाम पर की है, तो पब्लिक इंडिपेंडेंट है। इंफॉर्मेशन ऐसे आप आई विल सजेस्ट सर, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने जायदाद क्या है क्या नहीं, आई विल डोंट सजेस्ट कि पब्लिक फोरम पे आप ये इस तरह से करें, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट चीजें हैं ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तो इंफॉर्मेशन है, नोबडी इसमें वांट टू टेल कि आपके पास चले इसमें आपकी मेरे मर्जी है, बाद आप जस्ट टेल। मेरे बाद जो है मेरे वाइफ का उसमें ओनरशिप आ जाता है, या क्या होगा, कैसे होगा इन नहीं दैट केस? नहीं जी, अगर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे है कनाडा में, तो आपकी जो विल है उसके मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी जाएगी और उसके ऊपर प्रोबेट फी भी लगेगी। इवन तो आप कह जाते थे सब कुछ मेरी वाइफ को दे दो, तो आपकी वाइफ को प्रोबेट भी करवाना पड़ेगा बाद में, और उसको प्रोबेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। और पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वहाँ के सिस्टम को नहीं जानता इतना। सही, ठीक है। तो अगर अभी मैं शेयर कर सकता हूँ, अभी मैं प्रॉपर्टी में नाम चेंज कर सकता हूँ कि दोनों घर का के नाम ऊपर आ जाए? मॉर्गेज है आपको? आपके अब घर के ऊपर मॉर्गेज है? मेरा खत्म होने वाली, बिल्कुल जीरो, $1000 रह गए, लास्ट $1000 रह गए मेरे। तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझे, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड सारा से बता दूंगा कि ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरह से इसको बिल्कुल किया जाए। मैं क्वेश्चन आपके आंसर का क्वेश्चन आज यस, इसको इट्स डूएबल। ठीक है, आप थैंक यू। किसी और बेशक मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको इसका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिएगा प्लीज। जी मेरा ख्याल है ये जुबैर भाई या अलीम भाई सिस्टम जी, में उसके बाद आपको शेयर कर देंगे प्रॉपर तरीके से, थैंक उनके यू, फिर कांटेक्ट इंशाल्लाह। So जज़ाकल्लाह। we already reaches to the time where I try to give some more question to you. Two in the comments and two raise hand by Hassan Sayyid Sarfasa. Will you please unmute and ask the question? Hassan sir? Okay, then I would like to get Imtiaz sir, please ask the question. अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और प्लीज अपना वो जरूर शेयर कर दीजिएगा कार्ड। एंड दूसरे मैं ये नोट कर रहा था कि हमारे बहुत से दोस्त जो सवालात कर रहे हैं वो लॉयर से ज़्यादा मेरे ख्याल से अकाउंटेंट की फील्ड के हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एनईडी के फोरम जो हमारे यहाँ पे हैं जिन्होंने अरेंज किया है कि प्लीज़ एक इस तरह का सेशन किसी अकाउंटेंट से भी अरेंज कर दें, ताकि जो बहुत सारे सवालात जो हमारे दोस्त कर रहे हैं वो उसमें आंसर हो सके। क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है हमारे आदिल साहब के साथ कि वो बेचारे हालांकि मुझे पता है उनके आंसर होंगे, उनके पास बहुत सारे, लेकिन वो वकील हैं तो वो बहुत एहतियात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन का कि इट वाज वेरी नाइस सेशन। या व्हाट then I would like to Hassan Saab again, if you are here, please ask the question. Hassan Saab, I think so. Then I ask to the MU. I don't know who is MU. Yeah, this is Mohammed Malik. Mohammed Malik Saab. जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके इतना डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने का। मुख्तसर सा सवाल है बस कि ये विल जो है किस स्टेज पे बनाना चाहिए? मकसद ये कि रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद का है क्वेश्चन। और दूसरी बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इंडियन के लिए आप कितना कंसेशन दे सकते हैं अपने फीस में? जी विल जो बनानी चाहिए मरने से पहले बनानी चाहिए। I mean, to a very serious note, आप as soon as possible में है या आप थोड़ा सा वेट? I mean, इस सिलसिले में क्या था? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बात, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा हूँ जो, लेकिन मैंने ये सुना है कि इस्लाम में भी ये है कि आप अपने अगली सांस से पहले अपनी जायदाद के मुतालिक डिसीजन करके जाएं, विल बना के जाएं अगर आप बना सकते हैं तो। देयर इज नो टाइम लाइन। मैं बहुत सारे लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग जिनकी नई नई शादी होती है तो कहते हैं नहीं जी जब बच्चे होंगे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। अल्लाह मियां सबको मौका दे, लेकिन यही बात है जब तक आप हयात है बना सकते हैं, जब आप यू आर गॉन यू आर गॉन। ठीक है, ये चीज तो है। इसलिए जितनी जल्दी अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है, आपके बच्चे जितने होने थे वो हो गए हैं बच्चे, तो फिर विल बना ले। सेकंड पार्ट का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ सॉरी, सेकंड पार्ट जो है जी, हम लोग, मैं आपको सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस बता रहा हूँ, दिस इज ओके। और देखिए पता क्या, विल जो होता है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। एनीवेज, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को
बजाय के एक मनी मेकिंग बनाने के लिए हमने इसको बहुत नॉमिनल चार्ज इन चीजों के रखे होते हैं, क्योंकि इसमें से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स भी बनते हैं। जस्ट ऐसा बिजनेस में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग एक जब फी हम चार्ज करते हैं $400 प्लस टैक्स चार्ज करते हैं ईच व्हील का, राइट। और अगर अगर कपल हमारे पास आता है तो उसके हम $800 बनते हैं, जिसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं थोड़ा बहुत, अगर कपल हमारे पास आता है। लेकिन क्योंकि अब हमारे अलीम भाई जो हैं और जुबैर भाई, उन्होंने भी मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भाई एनईडी के लिए आप कुछ थोड़ा सा बेहतर कर दें, तो आई विल बिफोर आई से समथिंग, आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा मेरी डिस्कशन से कि ये दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ हाफ एन आवर जॉब, राइट। ये इसमें पहले हमें क्लाइंट के साथ एक फुल फ्लैश मीटिंग करनी पड़ती है, जो ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे की चलती है। उसके बाद हमें उसके ऊपर 3-4 घंटे लगा के उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके क्लाइंट्स को भेजना होता है। उनके साथ फोन पे कई बार क्लाइंट रिव्यू करते हैं, देन दे कम बैक टू आवर ऑफिस एंड वी आल्सो अगेन स्पेंड सम टाइम विद देम टू एग्जीक्यूट दोस डॉक्यूमेंट्स। सो इट टेक्स आवर 5 to 7 hours इजीली एज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। और बीइंग अ लॉयर, हम लोग जब आप लिटिगेशन के काम करते हैं, क्योंकि जस्ट फॉर योर नॉलेज यू गाइस, हम लोग स्टेट के अलावा हम लोग फैमिली लॉ भी करते हैं और हम लोग रियल एस्टेट लॉ भी करते हैं। तो फैमिली लॉ में जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट $400 पर आवर चार्ज करते हैं फॉर द फैमिली लॉ केसेस। लेकिन इन चीजों को, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि विल जो है सिर्फ एक क्लाइंट्स बनाने का जरिया होता है हमारे लिए, ताकि हमारे फ्यूचर में भी उनके साथ ताल्लुकात बने। तो अगेन, लेकिन जुबैर साहब और अलीम साहब ने जो रिक्वेस्ट मुझे की है उसके हिसाब से, अगर अगर एनईडी के हवाले से कोई शख्स कपल एक आता है तो उसको मैं बजाय $800 चार्ज करने के, उसको मैं $600 प्लस टैक्स चार्ज करके उनकी विल बना दूंगा, जस्ट टू गिव एन ऑनर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आदिल साहब, आपने कंफ्यूज कर दिया, मुझे। ये कपल से क्या मकसद में? मियाँ अलग बनाएंगे, बीवी अलग बनाएगी? भाई अगर तो आप लोगों ने मरने का प्रोग्राम इकट्ठे है, फिर तो एक ही चलेगी। ओह माय गॉड, यानी कि 800। नोबडी नोस कौन पहले मरेगा कौन बाद में मरेगा, लेकिन ये ना बात, विल एक्टिवेट होती है मरने के टाइम पे, इसलिए गॉड नोस कि किसने कब मरना है। सो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ जॉइंट विल। ओह माय गॉड, चलिए, थैंक यू वेरी मच। I would like to just आदिल one साहब thing से एक है। और रिक्वेस्ट की थी मैंने, उसके हवाले से आप रिकॉल करना भूल गए, क्योंकि हम लोग एज एनईडी अलुमनाई फोरम, एनईडी ऑनलाइन कनाडा जो है, हम लोग वर्कआउट करते हैं, नेटवर्किंग है, सोशल गैदरिंग है, और प्लस सब कुछ नीडी स्टूडेंट्स के लिए ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में एनईडी स्टूडेंट्स के हवाले से। उसमें आपकी लॉ फर्म जो है अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो उसके लिए अगर जी मैं इंशाल्लाह आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर लूंगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट। और सेकंड थिंग, जितने भी हमारे यहाँ पे अलुमनाई फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि इसके बाद कुछ और मजीद सेशन किया जाए अकाउंटिंग के हवाले से या डिफरेंट और टॉपिक के हवाले से, मैं भी बिलोंग करता हूँ एज इंश्योरेंस साइड से, मेरी अपनी ब्रोकरेज है। तो हम लोग एक्चुअली करते क्या है कि हम लाइबिलिटी को कवर करते हैं, बिल भी उसी वक्त बनाए, आपके पास कोई भी लाइबिलिटी आ जाती है तो उसको आप कवर जरूर करें, जो भी गवर्नमेंट को भी लॉ का एस्पेक्ट उसके लिहाज से कवर करें और अपनी लाइफ को इजी रखें, क्योंकि डेथ जो है अनसर्टेन होता है, पता नहीं होता। तो एटलीस्ट जिसके पास भी कोई चीज़ है, कोई प्लान कर रहा है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल कर दे, उसको ज़्यादा थिंक आउट ना करे। किसी प्रोफेशनल में बैठे हैं, अकाउंटेंट के पास बैठे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर के पास बैठे हैं, लॉ फॉर्म के पास बैठे हैं, और अपने आप को प्रिपेयर कर लें डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है कनाडा के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है सडनली अप एंड डाउन यहाँ पे होते हुए ना। तो उससे पहले कि खुदा ना खास्ता किसी का कुछ इंसिडेंट हो, उससे पहले आप इन लोगों को कांटेक्ट करें और उनकी एडवाइस जरूर लें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू आदिल साहब। There is still one question in the comment. I would like to finish the question by Sohail Mohammed. He is saying that what is the Canadian law on asset division if someone dies without a will? Number one, are there any tax implementation for children who inherit assets from their parent? If so, do you advise on legal ways to reduce them? So I think second तो आप दे चुके, पहले का आपको यह जवाब देना होगा। सेकंड पे तो मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, वो अपने अकाउंटेंट से पूछिए, उसको टैक्स प्लानिंग उन्होंने कैसे करनी है, ठीक है। और जहां तक पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो वो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन पर्पसेस अगेन, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जहां पे सक्सेशन एक्ट ना हो, सक्सेशन लॉ ना हो। नाम कोई भी उसको दे दें,
लेकिन मरने के बाद जायदाद की डिवीजन का कानून हर कंट्री में होता है। तो मैं जो कनेडियन कानून है वो आपको सिर्फ बेसिक सा बता सकता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं इस वक्त जा सकता उसके अंदर। अगर कोई शख्स, किसी शख्स की डेथ हो जाती है और उसकी कोई औलाद नहीं है, तो मियाँ का सारा कुछ बीवी को मिल जाता है, बीवी का सारा कुछ मियाँ को मिल जाता है। वो पीछे नहीं जाता, बहन भाइयों को नहीं जाता, माँ बाप को कुछ नहीं जाता उसके अंदर। अगर मरने वाले की एक स्पाउस, मैं यहाँ पे स्पाउस का वर्ड अब यूज करूंगा, स्पाउस में मियाँ या बीवी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में तो दोनों एक ही है ना, दोनों के राइट्स एक ही हैं। तो अगर किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है और उसका सिर्फ एक बच्चा है, तो वो जो बच जाते हैं उनमें 50-50 डिवाइड हो जाता है। और अगर उसके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो जो बचने वाला स्पाउस है उसको 1/3 मिलता है, और जो बाकी का 2/3 है उसके तमाम जितने भी बच्चे हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाता है। Thank you, Asaf. I think if there's a raised hand, so I think he's the last one. Please, you can reply him also. If there's a, please open your microphone and ask. जी आदिल साहब, आपने अभी कहा था कि जो एसेट्स होते हैं यहाँ पे वो स्पाउस को खुद ब खुद चले जाते हैं, तो वो नहीं सिर्फ सर, वो मैंने ऐसा नहीं कहा। सर मैंने ऐसा नहीं कहा, आई एम सॉरी। उसके बारे में कहा था, सॉरी मैं पूरी कर लूँ बात। वो आपने उनके बारे में कहा था अगर कोई जॉइंट अकाउंट है या अगर मकान है तो वो ऑटोमेटिकली वाइफ को चला जाएगा, स्पाउस को, और बाकी अगर जो जॉइंट नहीं है वो इस तरह डिवाइड होंगे अगर विल नहीं तो। वो वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था। तो मैं दोबारा इनसे अलवी साहब से ये करूंगा कि ये बिकॉज हम लोग सब माशाल्लाह मुसलमान है, तो जिस तरह ये आपने आदिल साहब को दिया तो इनको पूरा दोनों साइड का पता है कि इस्लामिक टच क्या होना चाहिए। वो ही इज नॉट एडवाइजिंग यू बट ही एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो किसी भी उसके पास जाएं तो जैसे आदिल साहब या कोई मुसलमान, तो इसी तरह अगर कोई वो अरेंज करें जो फाइनेंशियल प्लानर या अकाउंटेंट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी विल का एक है, वो आप किस तरह अपने एसेट सेव करें कि वो मैक्सिमम आपकी फैमिली को मिले। तो उसके लिए दोबारा अगर प्लीज ऐसा कर सकें कि मतलब एक अरेंज करें, दैट बी रियली नाइस। या इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे साहब, जाते जाते लोग पकड़ रहे। सलाम साहब कह रहे हैं व्हाट इज द चार्जेस फॉर पावर अटॉर्नी? जी हम $250 प्लस टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। I think we have to already reach above than 10 minutes. So I would like to thank to Adil Saab, and he actually have given very valuable information to all of us. And I also thankful to all other participants who come here and give the time. So really, on behalf of NED alumni, I would like to extend our sincere appreciation to you and your company, Adil Law Professional Corporation, for collaborating with us. And I hopeful that maybe in future you will actually give us more time for some related topics. And I again thank you to everyone who actually joined and give a time here. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Welcome. Please, welcome.